Hello friends, welcome once again. When we go to the SSB, we understand the selection rate in the SSB is very low as 3.6, and this creates a fear. And fear is a very natural human emotion, and it helps us to do self preservation. And ये fear हमें एक एंग्जाइटी देता है, उसे बोलते हैं परफॉर्मेंस एंग्जाइटी. किसी भी बड़े इवेंट में जाओ तो शुरुआत में एक घबराहट होती है एंड ग्रेजुअली वो ठीक हो जाता है. लेकिन यही फियर जब एक्सेसिव फियर हो जाता है, एक्सेसिव फियर और इरेशनल फियर, दिस कैन बी डैमेजिंग बिकॉज ये हमारे परफॉर्मेंस को बुरी तरह से अफेक्ट करता है. इनफैक्ट परफॉर्मेंस तो छोड़ो, प्रिपरेशन में ही अफेक्ट कर जाएगा. एंड दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ फेलियर. So fear of failure is considered as more dangerous than failure itself, because जिस आदमी के अंदर fear of failure है वो किसी भी चीज़ को attempt करने के लिए भी डरेगा. So fear of failure is more dangerous than failure itself. Now before we continue on this aspect, fear of failure के ऊपर बात करें, AFOSUP का ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड हाइब्रिड बैचेस अवेलेबल, जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड SSB बोथ क्लासेस आर कंडक्टेड इन composite batch format में. So those who are interested, you can contact me on this given number 9090099035, and I'll get back to you with the details. Kindly share with the friends. So I was talking about fear. इस fear को अगर हमने मैनेज करना है तो हमें प्रिपरेशन फेज पे ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज द मोर वी प्रिपेयर एंड मोर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द डेल्टा एंड एक्ट टू ब्रिज दिस डेल्टा, आवर परफॉर्मेंस विल गो better when we actually face the SSB. So good preparation will lead to a better performance in the form of Mansa Vacha Karmana, especially in case of SSB, and that will give you the outcome. And the outcome we understand is simply 3.6, which is very low. So हमने इस preparation, performance and outcome को पहले भी किसी वीडियो में देखा था. So this is the sequence. So fear actually affects your preparation, which in turn will affect your performance, and of course the outcome will get affected. So performance anxiety at the stage of the SSB can be handled if you prepare well, and that's a key. So इसलिए बोलते हैं preparation is the key to success, है ना. Now the better you prepare, the anxiety will go down and your chances of getting recommended by the SSB will go up. But the problem is, what happens when the fear of failure is very severe? Then it comes with consequence. And इस case में, when your fear of failure is too heavy and it is acute, this negatively impacts your preparation. Not only preparation, the entire process. It's not only for SSB, it affects your life as well. So performance anxiety in case of fear of failure, जिसको कि एटिकीफोबिया भी बोलते हैं, उस केस में ये बहुत ज़्यादा हो जाता है. सीवियरली इफेक्ट्स, विल सी दैट. सो fear of failure को एटिकीफोबिया भी बोलते हैं, एटिकीफोबिया, and it is an intense fear of failure. It's not a normal behavior, it's an extreme behavior, जहाँ पे किसी चीज़ के फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके हम देखते हैं, and it severely affects our performance, and performance से पहले our preparation also. So candidates who have this severe fear of failure, कहीं पे भी इनको एक फेलियर की पोटेंशियल दिखती है, कहीं पे भी अपने अंदर एक डेल्टा दिखता है, वो डेल्टा राई की पहाड़ की तरह मैग्नीफाई हो जाता है, एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, एंड दे आर नॉट एबल टू डू व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू एज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. एंड सिंस द प्रिपरेशन गेट अफेक्टेड, द परफॉर्मेंस गेट अफेक्टेड. एंड वी अंडरस्टैंड SSB में जब जाते हैं, द क्लियरेंस रेट इज 3.6. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो फियर ऑफ फेलियर इज़ लाइक, जैसे पेट में अगर आप बहुत भारी पत्थर बांध के स्विमिंग करोगे, यू कैन नॉट स्विम. सो फियर ऑफ फेलियर, मैंने पहले बोला, इज़ मोर डेंजरस दैन द फेलियर इटसेल्फ. इट इज़ लाइक जैसे टांगों में इतना बड़ा भार लगा के अब आप दौड़ में जाओगे तो कहाँ से होगा. सो साइकोलॉजिकली इट इज़ वेरी डैमेजिंग, है ना. सो फियर ऑफ फेलियर में बंदा छोटे चैलेंजेस को देख के घबरा जाता है, और ये मुझे SSB की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है. एंड द प्रॉब्लम इज़, इससे ठीक किए बिना हम कोशिश करते हैं कि कैसे भी टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के SSB से रेकमेंड हो जाए, वो गलत है ना. सो इनफैक्ट पीपल हु हैव गॉन थ्रू
रिलेशनशिप ब्रेकडाउन या मैरिटल कपल में अगर कोई डिवोर्स वगैरह हो जाता है तो सेकंड टाइम वो एक रिलेशनशिप में घुसने के लिए उन्हें बड़ा डर लगता है ना। आप लोग के केस में ब्रेकअप हो जाता है तो इतना चीटेड फील करते हो कि एक सेकंड रिलेशनशिप में अपने आप को जाने के लिए तैयार कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ फियर ऑफ फेलियर वंस अगेन। सो इट नॉट ओनली अफेक्ट्स एसएसबी, इट अफेक्ट्स लाइफ ऑल्सो। कैरियर में कभी फेल हो गए या एसएसबी में कभी नॉन रिकमेंड हो गए, वो इतना सीवियरली अफेक्ट कर जाता है विदाउट रियलाइजिंग कि हमने उसको प्रिपेयर ही ठीक नहीं किया, स्टिल वी फील कि हाउ डिड वी फेल। सो ये सब चीज़ें जो है एटिक्यूट फोबिया या फियर ऑफ फेलियर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं एंड इसे हमें ठीक करना पड़ेगा if you're serious about life and SSB. Now, some people simply because they feel कि if I fail, others will get disappointed. वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? This creates so much of pressure on us that try करके fail होने की बजाय पहले ही हम गिव अप कर जाते हैं. It affects our determination, it affects our consistency, it affects our focus, it affects our ability to concentrate. So it is a serious problem. Our risk-taking ability seriously get hampered because of this fear of failure. जहाँ पर रिस्क लेना है वहाँ पे भी हम रिस्क नहीं ले पाते बिकॉज हमें फेलियर की कल्पना कर करके उसके नीचे दब जाते हैं, है ना। तो एसएसबी में भी जिन लोगों को फियर ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा है उन्हें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के ग्रोथ जोन पे शिफ्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एंड दे वांट टू अचीव द सक्सेस बाई बीइंग इन द कंफर्ट जोन। तो ये सोच को चेंज करने की ज़रूरत है. दिस इज़ ए माइंडसेट प्रॉब्लम. माइंड इज़ नॉट द प्रॉब्लम, इट्स अ माइंडसेट प्रॉब्लम. इसे ठीक कर सकते हैं प्रोवाइडेड यू एक्नॉलेज कि हाँ मैं भी कंफर्ट जोन में फंसा हुआ हूँ, मुझ में भी फियर ऑफ फेलियर है, मैं प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं कर रहा लेकिन आउटकम चाहता हूँ. तो ये जब लिंक मिलेगा एंड देन व्हेन यू एक्नॉलेज देन इट कैन बी एड्रेस, है ना. सो पीपल विथ हाई फियर ऑफ फेलियर, जिनका एक्यूट फियर ऑफ फेलियर है, पहली बात तो वो डेल्टा देखना ही नहीं चाहते. उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं है कि वो अपने उस डेल्टा को देख पाए, और अगर डेल्टा को देख भी लिया तो इतना फियर ऑफ फेलियर हो जाता है कि उनकी ट्रेनेबिलिटी फैक्टर ही नीचे आ जाता है. सो वो डेल्टा भरने की जगह उसे टिप्स एंड ट्रिक्स से किसी तरह से करके इसको क्या बोलते हैं, इस गोल को अचीव करना चाहते हैं. वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता है. जो क्वालिटीज़ वो देख रहे हैं और जो क्वालिटीज़ आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो वो दोनों में बहुत ज़्यादा मिसमैच आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ फेलियर. आप एक अधिकारी बनना चाहते हो और अपने अंदर एक कमी देख के उस कमी से घबराना किस लिए? यू मस्ट फिक्स इट, हैव द करेज टू एक्सेप्ट इट एंड फिक्स इट. सो फियर ऑफ फेलियर इस एक्सेप्टेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एंड हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक्स लगा दे, और क्वालिटी छुपा दे, ये छुपा दे, वो छुपा दे, छुपा के ऑफिसर बनना चाहते हैं. सो दिस इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ बीइंग इन कंफर्ट जोन, लैक ऑफ डेडिकेशन, लैक ऑफ डिटर्मिनेशन, फियर ऑफ फेलियर. इन सबका कॉम्बिनेशन है कि अपने अंदर की कमी को देखते हुए भी हम उसे ठीक नहीं करना चाहते. इट इज़ कॉल्ड एटिकी फोबिया, फियर ऑफ फेलियर. सो टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के, इतना पैसा, इतना एफर्ट्स लगा के आप ये जो करते हो, अगर बन भी गए तो आप इन कमियों के साथ ही ऑफिसर बनोगे, और ये कमियां आपको एक कमीशन ऑफिसर के लाइफ में भी तकलीफ देगा, और वो चीज़ें वहाँ पे भी मैनिफेस्ट होने की पॉसिबिलिटी रखता है बिकॉज आपने एसएसबी से पहले उसे दुरुस्त करने का प्रयास नहीं किया बल्कि छुपाया है ना. फियर ऑफ फेलियर के बहुत सारे इमोशनल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के रूम में भी ये मैनिफेस्ट करता है, लाइफ में भी करता है, और वो एसएसबी में भी दिखता है. फॉर एग्जांपल शेम, यू ऑलवेज फील दैट यू आर नॉट अप टू द मार्क, अदर्स आर बेटर देन यू, है ना. एंग्जाइटी, एक घबराहट हमेशा बना रहता है. देन इफ़ इट इज़ नॉट मैनेज इट लीड्स टू ओवर थिंकिंग, एंड ओवर थिंकिंग से जाके अगर तब भी कंट्रोल नहीं हुआ तो डिप्रेशन एंड सुसाइड के लेवल पे भी चला जाता है फियर ऑफ फेलियर के कारण. मतलब सोच के ही अपनी घबराहट में छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा कर देना, राई का पहाड़ बना देना, एंड डिप्रेशन में घुस जाना. एंड पीपल विद डिप्रेसिव टेंडेंसीज, डेफिनेटली आप कैसे वो क्वालिटीज़ दिखाओगे एसएसबी में जो वो देख रहे हैं, क्योंकि आपकी क्वालिटीज़ जो है वो तो बिल्कुल ही विरोधाभास में है, कम्प्लीटली ऑन अ टैंजेंट, है ना. पैनिक अटैक, आपके मतलब बिल्कुल बाल खड़े हो जाते हैं, है ना. आपको चिल्स जो होते हैं, बाल खड़े होते हैं कभी कभी, पता है ना, डर के मारे. सो अगर वो कॉन्स्टेंटली आपका होता है छोटी छोटी चीज़ों में, लेक्चर भी जाना है, पब्लिक स्पीकिंग करना है, जीडी में बोलना है, इंटरव्यू में बोलना है, और आपके बाल खड़े हो रहे हैं, तो आप पहले इससे ठीक करो.
एंड देन यू गो फॉर द एसएसबी इंटरव्यू. डिजीनेस, सिर चकराना, प्रेशर में आके सिर चकराना, है ना, लेक्चरेट में सिर घबराना, गला सूख जाना, ये सब क्या है? ये सब पैनिक अटैक का. हाइपर स्वेटिंग, सर्दियों में स्वेट हो रहा है, बुरी तरह से पसीना आ रहा है जहाँ पे नहीं आना चाहिए वहाँ. क्यों? क्योंकि अंदर इतना फियर ऑफ फेलियर है, इतना वो घबराहट हो रहा है कि उस घबराहट में पूरा अंदर का सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम ही गड़बड़ हो रखा है. चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, है ना, छाती में दर्द. क्यों? स्टेज पे चढ़ना पड़ रहा है, पब्लिक स्पीकिंग करना पड़ रहा है, लेक्चर देना पड़ रहा है, अरे तो बोलना पड़ रहा है. क्यों? एक्सपोजर नहीं है. तो उस घबराहट को ठीक किए बिना एसएसबी जाके ये उम्मीद करना कि हम रेकमेंड हो जाएंगे, वो गलत है. ये जीवन में भी असर करेगा. नौजिया, उल्टी आना, है ना, गला सूख जाना, दीज आर ऑल पैनिक अटैक के सिम्टम्स है. रेसिंग हार्ट, दिल का इतना बुरी तरह से धड़कना कि ऐसा लगता है कि फट ही जाएगा. क्यों? बिकॉज उस इवेंट को, उस सिचुएशन को फेस करने की क्षमता को हमने एनहांस नहीं किया. ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के चले गए और जब वास्तविक में वो सिचुएशन आया तो हमारा पूरा कंट्रोल ही छूट रहा है. नेक्स्ट इज ट्रेम्बलिंग एंड शेकिंग हैंड्स एंड लेग्स, है ना, हाथ पांव कांप रहे हैं. ये सब पैनिक अटैक के वो है. इंटेंस टेरर, जहाँ पे कोई डर का रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे इतना क्या बोलते हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट डर हो रहा है ना. चोकिंग एंड स्मोदरिंग सेंसेशन, गला सूख रहा है. लो सेल्फ एस्टीम भी इसका रिजल्ट हो सकता है. अगर आपने फियर ऑफ फोबिया को, फियर ऑफ फेलियर को ठीक नहीं किया तो धीरे धीरे ग्रेजुअली एज के साथ में, फेलियर्स के साथ में, यू विल सफ़र फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम. एंड लो सेल्फ एस्टीम के कुछ इंडिकेटर्स जो शेम, पेसिमिज्म, यू ना, छोटी छोटी चीज़ों को एग्जैजरेट करना, दूसरों को ब्लेम करना, परिस्थिति को ब्लेम करना, लेकिन अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, लैक ऑफ बाउंड्रीज, है ना, बाउंड्रीज की समझ नहीं दिखाना, पुटिंग अदर्स डाउन, सोशल विड्रॉल, है ना, समाज से विड्रॉ होना, एंड फिजिकल सिम्टम जो हमने पहले पैनिक अटैक में देखे, ये सब इसके सिम्टम्स है. एंड इसको यूँ समझ लो कि जब हम फियर ऑफ फेलियर होता है तो जो आपका एक एमिगडाला करके जो एक ब्रेन का एक हिस्सा है, वो क्या करता है, ब्रेन में आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए ट्रिगर करता है और ब्लड को माइंड की जगह या ब्रेन की जगह पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना शुरू कर देता. तो बॉडी के अंदर वो पूरे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले सिम्टम्स देखे थे वो आना शुरू हो जाता है, जिसके कारण ब्रेन का एफिशिएंसी नीचे चला जाता है और हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए बॉडी तैयार हो जाता है. इट्स, यू कॉल इट फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्ड. फाइट इज सामना करना, फ्लाइट इज भाग जाना. सो स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर करने का मतलब है हमारा आवर एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस बिकम्स एक्सट्रीमली लो अंडर एक्सटेंसिव फियर ऑफ फेलियर. तो हम देख रहे हैं वहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू बाउंस बैक, लाइवलीनेस एंड ऑल दैट, लेकिन हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कम्प्लीटली टैंजेंट में उल्टा हो रहा है. सो दिस नीड्स टू बी करेक्टेड बिफोर गोइंग फॉर एसएसबी. एंड इन हालात में व्हेन यू गो फॉर द एसएसबी वेयर द क्लियरेंस रेट इज़ 3.6, नेचुरली आपका परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बहुत हाई होगा और इस परफॉर्मेंस एंग्जाइटी को इतना पैसा और समय देके टिप्स एंड ट्रिक्स से ठीक नहीं किया जा सकता. यू नो, एक्सेसिव फियर से प्रॉब्लम क्या होता है, छोटी छोटी बातों का हम बहुत बड़ा पतंगड़ बना देते हैं, राई का पहाड़. एंड देन एसएसबी के प्रिपरेशन में भी छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं, उसे हैंडल करने की बजाय इट बिकम्स वेरी बिग, है ना. बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल ठीक करना वो ही नहीं कर पा रहे, करंट अफेयर्स ठीक नहीं है उससे नहीं कर पा रहे. क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन रेकमेंड भी होना चाहते हैं. ये सब क्या है? ये एक मेंटल माइंडसेट का प्रॉब्लम है विच नीड्स टू बी करेक्टेड एंड द बेस्ट थिंग इट कैन बी करेक्टेड. गैप देख कर उसे अनदेखा कर देना और फिर भी उम्मीद लगाना कि इसके बावजूद हम अपने लक्ष्य को पा पाएंगे, है ना, शतुर्मुर्ग की तरह. सो दीज आर लो रिस्क टेकिंग और अवॉइडेंस टेंडेंसीज है जो कि काफ़ी डेंजरस हो जाता है. यू नो, माइंडसेट कुछ ऐसे मेंटल पोजीशनिंग बना रखा है कि मुझसे तो ये होगा ही नहीं. अब जैसे घोड़ा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये 2 मिनट में यहाँ से निकल के जहाँ जाना जा सकता है, लेकिन माइंड में फंसा हुआ है कि मैं तो बंधा हुआ हूँ. तो ठीक उसी तरीके से वी रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ एंड वो हमारे यू नो प्रोग्रेस को, ग्रोथ को हैम्पर करता है. दिस नीड्स टू बी करेक्टेड, दिस कैन बी करेक्टेड. दिस आर ऑल माइंडसेट प्रॉब्लम. यू नो, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल, लैक ऑफ कंटेंट, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, ये वीक है, मुझे पता है ये वीक है, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं कर रहा हूँ और उम्मीद भी कर रहा हूँ कि मैं रेकमेंड हो जाऊँगा.
सो व्हाट इज स्टॉपिंग अस, क्या चीज़ हमें रोक रहा है? जब इसके ऊपर सवाल होगा तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? सो छोटी छोटी चीज़ें जो करेक्ट कर सकते हैं उसे भी नहीं कर पाना, दीज आर ऑल issues that needs to be fixed. Now, in order to overcome this fear of failure, we have to understand that fear जो है ये इसका जो सोर्स है वो हमारे अटैचमेंट से है, अलग अलग परिस्थितियों से, पुराने बैड एक्सपीरियंस से. सम बैड एक्सपीरियंस आर एक्चुअल, सम आर परसीव्ड, कल्पना में ही हो रखा है. और जब तक हम इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसे फिक्स नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग फियर इंड्यूसिंग सिचुएशन, जब तक उन सिचुएशन को नहीं पहचानेंगे विच इज ट्रिगरिंग दोज फियर रेस्पॉन्सेज इन अस, स्ट्रेस रेस्पॉन्स इन अस, तब तक उसे ठीक नहीं कर पाएंगे. मतलब रूट को जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे उसे फिक्स नहीं कर पाएंगे. कंसिडरिंग वर्स्ट केस सिनारियोज ना, लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आए होंगे जो बहुत बुरे होंगे, तो वील हैव टू सी हमने वहाँ पे क्या सोचा था और वास्तव में हुआ क्या. मेनी टाइम द सिचुएशंस आर नॉट एज बैड एज वी थिंक और वी एज्यूम दे आर. दे वर मच बेटर, बट हमारे माइंड ने उसे मैग्नीफाई करके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था या बना रहा है. सिमिलरली यू हैव टू सी कि ऐसा भी जाओगे, व्हाट विल बी द वर्स्ट केस सिनेरियो. वर्स्ट केस सिनेरियो will be that you will not get recommended anyway. That's what is maximum result, that's what is coming. So फिर किस लिए डरना है? तो why can't we prepare so that that scenario does not happen and we get recommended? But preparation में comfort zone से बाहर जाना पड़ेगा. comfort zone से बाहर नहीं जाना चाहते because वहाँ पे fear आ जाता है कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे. This needs to be corrected, है ना. and जब तक हम इस root cause को आइडेंटिफाई करके उसे एड्रेस नहीं करते, इस फियर ऑफ फेलियर को टिप्स एंड ट्रिक्स से तो दूर नहीं किया जा सकता है. एंड यू नो मेनी टाइम अगर हम कॉजेज़ को देखें कि फियर ऑफ फेलियर, एटिकोफोबिया का कॉजेज़ क्या है, यू कैन फाइंड कि फैमिली हिस्ट्री है. माँ बाप में बहुत ज़्यादा फियर ऑफ फेलियर, ओवर एंग्जाइटी उस तरह के है, या फैमिली में डिप्रेशन का या सुसाइड का केस है जहाँ पे जेनेटिकली दोज कंपोनेंट्स आर देयर. सो उसके सोर्स वहाँ पे भी हो सकते हैं. लर्न बिहेवियर, घर में माँ बाप ने बचपन में इतना मारा पीटा है कि आपका सेल्फ एस्टीम ही नीचे चला गया और हर चीज़ में जीतने की आपको होड़ में लगा दिया. नाउ एक फेलियर या नॉन रिकमेंडेशन, रिजेक्शन से इतना ज़्यादा डर लगता है कि हम उस साइड जाते ही नहीं है. सो इट कैन बी लर्नड बिहेवियर ऑल्सो. नेक्स्ट इज अदर फोबिया, दूसरे कुछ फोबियाज है जो आपके फियर ऑफ फेलियर को और ज़्यादा मैग्नीफाई कर देता है. फॉर एग्जाम्पल पीपल आर परफेक्शनिस्ट, दे वांट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट. नाउ परफेक्शनिस्ट जो है वो उस चक्कर में छोटा छोटा गलतियों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, एंड देन इट वन फोबिया फीड्स ऑन टू दी अदर फोबिया. फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों को स्कूल में जाने से डर लगता है तो वो फियर बाद में जाके एडल्ट स्टेज में भी किसी ना किसी रूप में मैनिफेस्ट करना शुरू हो जाता. अगर माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत मारा पीटी करते थे, तो डर बैठ जाता, वो डर फिर निकलना मुश्किल हो जाता. तो दीज थिंग्स हैव टू बी आइडेंटिफाई, सोर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो ये एसएसबी की तैयारी में साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ इंटरव्यू में उलझने से नहीं होगा. है ना. सेल्फ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट जो है दैट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई दीज थिंग्स एंड फिक्स इट. योर लाइफ के ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस है, फेलियर्स इन लाइफ, या एक्सीडेंट है, कोई फिजिकल अब्यूज़ है, मेंटल अब्यूज़ है, कोई फैमिली में डिप्रेशन, सुसाइड, नियर वंस का डेथ हो गया, या कोई आपके साथ अनहोनी हो गया, वो इवेंट इतना स्ट्रांगली आपने पकड़ के रखा है कि आगे फ्यूचर में किसी और सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने में हम इनकेपेबल हो जाते हैं. सो दीज आर ऑल ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस जिसके कारण हमारा रिस्पॉन्स फ्यूचर में वो नहीं दे पाते जो एक्सपेक्टेड है, एंड इट अफेक्ट्स आवर परफॉर्मेंस बोथ इन लाइफ एंड एसएसबी. सो अटैचमेंट ऑफ वेरियस टाइप इज़ द रूट कॉज, एंड अटैचमेंट का सोर्स क्या है वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है ना. इट कैन बी मटेरियल पोजीशन, इट कैन बी रिलेशनशिप फेलियर, इट कैन बी स्टेटस, मैं अपने स्टेटस को पकड़ा हूँ, मुझे स्टेटस के चले जाने का डर लगता है. इट कैन बी सेल्फ इमेज, मेरा अगर मेरी खोखलापन बाहर आ गया तो मेरा सेल्फ इमेज का क्या होगा. इट कैन बी मेरा ईगो इतना फ्रेजाइल है कि मेरी औकात बाहर आ गई तो मेरा क्या होगा. एंड अदर्स ओपिनियन, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे अगर मैं नहीं करूँगा. तो ये चीज़ें हमें एक ऐसा लगता है जैसे कार चला रहे हैं लेकिन हैंड ब्रेक लगाया हुआ है. वी कैन नेवर बी ट्रू
and we can never explore ourselves to our fullest potential because of these mental blockages. And ये हमें fear of failure या phobia की तरफ को लेके जाता है. So if you want to address these, if you want to actually address करना चाहते हो fear of failure और इनसे associated चीज़ों को, then it can only happen when you are able to address them by the underlying attachments or the root cause, and only then inner peace, stability and clarity will come, and this is possible. So इसके लिए दो चीज़ करना है शुरुआत में. One is a complete transformation, not only SSB के लिए, life के लिए भी, because tomorrow you will get into a profession, you will get into a married relationship, और अगर ये fear of failures, ये low self esteem से सफ़र करोगे, ये आपको वहाँ पे भी असर करेगा. And total self transformation का मतलब it is not changing yourself from the outside, it is to change yourself, shifting yourself to completely new dimension of experience and perception, है ना. बोलते हैं what is the point of polishing the outside when there is no inside. So that's the approach we take in our training in the self management leadership के आधार पर जब करते हैं तो it's a complete overhauling of your system, जहाँ पे आप अपने इन टाइप के कॉम्प्लेक्सेस को समझ के उसे ठीक करते हो. सेकेंडली इन सब की चीज़ों का एक सबसे बड़ा शुरुआत है अपने आप को समझ कर, सेल्फ अवेयरनेस. जितना आप अपने आप को सेल्फ अवेयर होंगे उतना आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में, आपके स्ट्रेंथ, आपके वीकनेस, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ सिस्टम, आपके एटीट्यूड्स, आपके फियर्स, आपके फोबियाज को आइडेंटिफाई करोगे, उसका रूट को आइडेंटिफाई करोगे, इट बिकम्स ईजी टू फिक्स इट. सो इसे बिल्कुल कर सकते हैं. एंड इसे ना करके एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड, जैसे ये पागल घोड़े की तरह माइंड से हम प्रिपरेशन करेंगे और सोचेंगे कि रेकमेंड हो जाएंगे, नहीं होगा. बिकॉज परफॉर्मेंस एंग्जाइटी बहुत हाई होगा और ये चीज़ ना सिर्फ आपको महसूस होगा, ये उन तीनों एसएसएस को भी महसूस होगा जो आपको एसएस करने वाले एसएसबी में. उसी तरीके से अगर आपका ब्रेन शांत हो जाए और एक सही दिशा में काम करना शुरू करे तो ग्रेजुअली आपका फोकस बढ़ेगा. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ गति से ज़्यादा दिशा पे काम करने की ज़रूरत है. सो आप खुद ही देखो प्रिपरेशन में ये पहला वाला घोड़ा और दूसरा वाला घोड़ा, कौन सा घोड़ा इज़ मोर बेटर. मन भी तो एक घोड़ा है. सो फर्स्ट वाला इज़ अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रैक्टेड माइंड, सेकेंड इज़ क्लियर फोकस. सो आई थिंक द सेकेंड माइंड इज़ व्हाट इज़ desirable mind. Imagine your performance with a stable mind. Your probability of getting recommended becomes very, very high because you have internal clarity. You know what are you doing. You're prepared so well that the fear is mitigated. You understand the cause-effect relationship. So naturally, the probability of achieving the outcome becomes very, very high when your internal faculties are stable. That's why मैं SML में एक statement बोलता हूँ, if you can manage the world inside you, you can manage the world outside you. तो मुझे ज़रूर कमेंट लिख के बताना कि क्या आपको भी fear of failure अफेक्ट करता है, क्या आपके परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट करता है, क्या आपके इंटरनल फैकल्टीज आउट ऑफ कंट्रोल जाता है. डू यू सफ़र फ्रॉम ओवर थिंकिंग, डू यू सफ़र फ्रॉम रेसिंग माइंड, डू यू सफ़र फ्रॉम fear of failure, डू यू सफ़र फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम. तो इन्हें फिक्स करना है और किया जा सकता है, समय लगता है. सो जरूर कमेंट लिख के बताना. इफ़ यू कैन मैनेज द वर्ल्ड इनसाइड यू, यू कैन मैनेज द वर्ल्ड आउटसाइड यू. ये जो कोर क्वालिटी के वीकनेस है, इंक्लूडिंग फियर ऑफ फेलियर, फोबियाज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, स्ट्रेस प्रोननेस, सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन, ग्रीड, इन सब चीज़ों को छुपा नहीं सकते. इन्हें ब्रिज किया जा सकता है, provided you increase your level of self-awareness, you have the ability to accept constructive criticism, and there is a strong willpower to correct it. These are life requirements, these are not SSB requirements. So don't hide them, let's correct them. जरूर कमेंट लिख के बताना. And if you need assistance in any of these, you can contact me on this given number, and self-management leadership will definitely help you to identify them and bridge them. It will give you the tools to bridge it. No tips and tricks. इसके अलावा I've already told you Air Force Peak classes are available in the online, offline and hybrid mode. इसमें दो parts है. One is the self management leadership part, which is the basic building block
या फाउंडेशन बनाने का, एंड सेकंड इज द SSB के तीनों टेस्टिंग टूल. आज क्या हो रहा है, आप सिर्फ टेस्टिंग टूल पे काम कर रहे हो, आप फर्स्ट पार्ट को इग्नोर कर रहे हो. दिस नीड्स टू बी करेक्टेड. SML के various topics I've already showed it in multiple videos. So law of cause and effect relationship, development of problem solving, development of critical thinking, development of creative thinking, development of decision making skills, self awareness, key to success, manage MIS of self, smart goal setting, relationship management, stress management, development of effective communication skills. These are some of the topics that we cover, including metacognition. They will act as a strong foundation जहाँ पे etiquette, phobia and various other things can be identified and the root can be traced and fixed. It takes time, it takes effort. So जरूर मुझे बताना. In case you're interested, please contact me at 9090099035 and I'll get back to you. Online, offline and hybrid classes are available. Kindly share with your friends, and in case you're not already subscribed the YouTube channel, kindly subscribe it. For any assistance, can contact me on this number. Do share with your friends. Thank you and may God bless you. Thank you very much.